So students, today our topic is ionic equilibrium. As we know that in our previous chapter, we have discussed the chemical equilibrium. So what is equilibrium? Equilibrium is that state where the rate of forward reaction is equal to the backward reaction. In the previous chapter, we have discussed the chemical equilibrium in non-electrolytes. So, our chapter is ionic equilibrium, where we are discussing about the equilibrium between the ions. So, first of all, we know that what is substance. Substance in our equilibrium is of two types. First is non-electrolyte and second one is electrolyte. Non-electrolyte. Non-electrolyte are those substances which do not dissociate into ions, or we can say that where the value of degree of dissociation is equal to 0. For an example, urea, glucose, fructose and all the organic substances generally considered as non-electrolyte. Where are the electrolyte? Are those substances which are dissociate into ions. These can be of two types. First is strong electrolyte and second one is weak electrolyte. Strong electrolyte are those electrolytes which show complete dissociation, or we can state that which show 100% dissociation, so that their value of alpha is equal to 1, and where the value of alpha is equal to less than 1, or we can say that value is very less than 1. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स देखने को मिलते हैं, लाइक H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस KOH एंड स्ट्रॉन्ग एसिड HCl. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वेयर आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, जहां पर आपका 100% डिसोसिएशन नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं जहां पर पार्शियली डिसोसिएट देखने को मिलता है. तो जैसे कि हमारा ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया. ये तो बात की हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अगर मैं बात करती हूँ तो हम लोग सब्सटेंस को टू पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी. First of all, substance can be divided of the two parts. First is conductor and the second one is non-conductor. Conductor, it may be of two types. First is metallic conductor and the second one is ionic conductor. Metallic conductor are those conductor in which the movement of free electron, so that they conduct electricity. Ionic conductors or electrolytes are those substances in which the movement of free ions, so that they conduct electricity, or we can say that in the aqueous solution and molten state they show the movement of free ions. And the next topic is what will happen when the temperature is increases. If in the case of the metallic conductor, if we increase the temperature, conductivity will decrease. But in the case of ionic conductors, temperature increases and conductivity decreases. So let me explain. अगर हम टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर के बढ़ाने से बेसिकली क्या होता है, कर्नल्स जो होते हैं, कर्नल्स का मतलब होता है जो पॉजिटिव पार्ट हमारा रह जाता है, वहां पर वाइब्रेशंस बढ़ जाती है. वाइब्रेशंस की बढ़ने की वजह से ये हिंड्रेंस कोज करते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हिंडर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है. बट इन द केस ऑफ आयोनिक कंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केसेस में क्या होता है, हमारे यहाँ पर फ्री आयंस का नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट के अंदर, जिसकी वजह से मूवमेंट बढ़ जाती है और मूवमेंट की वजह से हमारी कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है. सो दीज आर द ऑल अबाउट सब्सटेंसेस. होपफुली आपको सब्सटेंस क्लियर होंगे. द नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड बेस थ्योरी. एसिड बेस थ्योरी से मूव करने से पहले हम बात करना चाहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की. इलेक्ट्रोलाइट्स मे बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द सेकंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. Strong electrolyte are those electrolyte where the 100% of dissociation takes place. It can be of two types. First is strong acid and second one is a strong base. And the next one is weak acid and this is one is weak base. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि H2SO4 की बात मैं करती हूँ तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट अगर मैं वहीं पर H2SO3 की बात करती हूँ तो ये क्या है, एक वीक एसिड है. अगर मैं HNO3 की बात करती हूँ तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है,
बट इसी का एक ऑक्साइड और HNO2 ये क्या है, एक वीक एसिड है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HClO4, HClO3 ये हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट अगर मैं बात करती हूँ HClO2 की, ये क्या है, एक वीक एसिड है। अगर मैं हाइड्रा एसिड्स की बात करती हूँ, हाइड्रा एसिड्स लाइक HBr, HI, HCl, तो ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बट अगर मैं HF की बात करती हूँ तो HF मेरा क्या है, एक वीक एसिड है। वीक एसिड मीन्स इसका 100% डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करती हूँ लाइक NaOH, लाइक LiOH, all alkali metals, all alkali metals hydroxide, all alkali metals हाइड्रोक्साइड, जितने भी अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। बट एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की बात करती हूँ मैं, एल्केलाइन मेटल्स की बात करती हूँ तो एल्केलाइन मेटल्स में बेरियम हाइड्रोक्साइड ही हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जबकि हमारे बाकी बचे हुए जैसे कि बेरियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, वीक बेस होंगे। सो वी कैन से दैट ऑल एल्केलाइन मेटल्स हाइड्रोक्साइड are weak base except Ba barium hydroxide। सो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा HCN हो गया, ये भी हमारे पास क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो हमें जब भी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं और हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं। सो टुडे our electrolytes is complete. So the next topic is theories of acid and base। अगर हम लोग एसिड और बेस की बात करते हैं कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस, तो डिफरेंट हमारे साइंटिस्ट आते हैं जो कि एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। तो हमारी सबसे पहली जो थ्योरी आती है इसको हम लोग बोलते हैं अरहेनियस एसिड बेस थ्योरी। तो हमारे जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एसिड को एक्सप्लेन किया तो उनका क्या नाम था, अरहेनियस। तो उन्होंने अपने नेम के अकॉर्डिंग दो तरह के एसिड बेस दिए, फर्स्ट इज अरहेनियस एसिड एंड द सेकंड वन इज अरहेनियस बेस। अरहेनियस एसिड वो वाले एसिड्स होते हैं जो कि पानी के अंदर जाने पर या फिर बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाने पर H+ आयन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल HX का मतलब है यहाँ पर आप X कोई भी हेलोजन ले सकते हो, X कोई भी हेलोजन लाइक HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, H2SO4, H3PO4। तो बेसिकली होता क्या है, ये एसिड पानी में जाने पर क्या रिलीज करते हैं, H+ और A- आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि मान लेते हैं कि हमें कोई भी एक आयन गिवन है, लाइक हमें ये वाला आयन गिवन है, तो हमसे ये पूछते हैं कि क्या ये जो हमें आयन गिवन है क्या ये एसिड क्या ये अरहेनियस एसिड का पार्ट है, क्या जो हमें ये एसिड गिवन है, कोई भी ये पार्ट गिवन है, क्या ये अरहेनियस एसिड का पार्ट है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ से H2O को हटा देना है। मतलब हमारे पास कोई भी चीज है, अगर हम इसमें से वाटर को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि H9O4 पॉजिटिव में से वाटर को रिमूव करा तो क्या आया, HCO3। अगर H7O3 में से रिमूव करा तो क्या बना, H5O2 पॉजिटिव। अगर H5O2 में से रिमूव करा तो क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। बेसिकली अरहेनियस एसिड की ये पहचान होती है कि हम पानी में जाने पे वो जो H+ आयन रिलीज करता है तो वो H2O के साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है, H3O पॉजिटिव बना देता है। इसका एक एक्सेप्शन है H3BO3 जिसको हम लोग बोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, बोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। बोरिक एसिड एक अरहेनियस एसिड नहीं है, बोरिक एसिड कोई भी अरहेनियस एसिड नहीं है, बल्कि बोरिक एसिड एक लुईस एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अरहेनियस बेस। जितने भी हमारे OH नेगेटिव डोनर होते हैं
OH नेगेटिव डोनर स्पीशीज होती हैं एक्वा सोल्यूशन में, हम उन्हें क्या कहते हैं, अरेनियस बेस, लाइक MOH हो गया, MOH का होल ट्वाइस हो गया, MOH का होल थ्राइस हो गया। अगर ये पानी पर जाएंगे तो ये M पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, ये हमारे क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। इसी तरीके से OH नेगेटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हमारा क्या बनाता है, H3O2 नेगेटिव। H3O2 नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाएगा, H5O3 नेगेटिव। इसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है और हमारे पास ये स्पीशीज है तो हम बता सकते हैं कि ये अरेनियस बेस का पार्ट है या नहीं है। अगर हम बात करते हैं BOH होल थ्राइस का, तो ये एक बेस नहीं है बल्कि ये एक एसिड है, और ये कौन सा एसिड है, ये एक लुईस एसिड है। तो हमारी जो फर्स्ट थ्योरी है अरेनियस थ्योरी, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। द नेक्स्ट थ्योरी इज ब्रोंस्टेड थ्योरी। हमारी नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है, ब्रोंस्टेड थ्योरी। ब्रोंस्टेड ने थ्योरी दी थी। ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे जो ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं, BA का मतलब क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड, और BB का क्या मतलब है, ब्रोंस्टेड बेस, वो क्या होते हैं, वो H पॉजिटिव डोनर होते हैं। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं उसे, जैसे हम उसको किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, पानी में जाने पर H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। तो जितने भी हमारे अरेनियस एसिड होते हैं, ये क्या है, अरेनियस एसिड है, जितने भी हमारे क्या होते हैं, अरेनियस एसिड होते हैं, वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं। क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं। ऑल अरेनियस एसिड आर नोन एज ब्रोंस्टेड एसिड। और अगर मैं बात करती हूँ हमारे ब्रोंस्टेड बेस की, तो ये हमारे क्या होते हैं, H पॉजिटिव एक्सेप्टर होते हैं। H पॉजिटिव एक्सेप्टर, मान लेते हैं मेरे पास ये कोई भी आयन है, ये हमारे पास बेस का काम करेगा, ये अगर H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ पर HX एसिड बना लेगा। जैसे कि HCO3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं ब्रोंस्टेड बेस, जिसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। अगर ये प्लस के साथ H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। और यहाँ पर क्या है, H2PO4 नेगेटिव, अगर इसको H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बनेंगे आपके H3PO4, आपका क्या बन जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर मैंने जितने भी ब्रोंस्टेड बेस लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये अपने अंदर से एक H और निकाल सकते हैं, तो ये एसिड का भी काम कर सकते हैं। ऑल अरेनियस बेस आर नॉट ब्रोंस्टेड बेस। बस ये बात आपको याद रखनी है कि जितने भी आपके अरेनियस बेस हैं वो सारे के सारे ब्रोंस्टेड बेस नहीं है, वो हमारे सारे के सारे ब्रोंस्टेड बेस नहीं है। सो ब्रोंस्टेड थ्योरी के अंदर ही हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करती हूँ एसिड की, अगर हम बात करते हैं किसकी, एसिड की, कोई भी एसिड है, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, तो अपने अंदर से क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा। अगर वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहा है तो बाकी बचा हुआ उसके अंदर क्या रह जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो अपने अंदर से वीक बेस को रिलीज करेगा, अगर वीक एसिड है तो वो अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग बेस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। फॉर एन एग्जांपल HNO3, ये मेरे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड